ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਭਾਈ ਮਠਾਈ ਲਿਆਇਓ, ਟੋਕਾ ਲਿਆਇਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਮਠਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ AID ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ID ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਇਹ ID ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਦੱਸੋ ਮਠਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਬਾਈਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ID ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਰ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਮੌਲਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਧੜਾ ਦਬਾ ਕੇ ਧੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਸਾਹਲ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਧੜਾ ਦਬਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਰੇਲਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ। ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਚੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਭਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੈਬੋ ਗੈਬ ਸਹਿ ਦੱਸ ਨਾ ਤੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਅਫਜ਼ਲ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਆਪਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਲ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਯਾਰ ਭਾਈ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਥਿਆਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 2 ਬੰਦੇ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਤੀਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਯਾਰ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमर भाई पहला मैनू ये दसो कि मैं चल गया काल ते मसरूफ हो गया, सप किन्ने कड्डे जे? सब जनाब 3 पूरे करते ना। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब सब। ਓਏ ਆ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਿਆਰ ਸੋਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? 3 ਕਿਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੇ ਬੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮੂਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ और को जैन सवाल भाई की करो, हाल है? थल्ले ठीक ठाक हो? कादियानी बैठे ने, थल्ले कादियानी अल्लाह बैठे का ने, शुक्र कोई है सवाल तुम करो तो ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣੀ ਲਾ ਤੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਹਲ ਅੱਧੀ ਕਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਹੀ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਹਲ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰ। ਓ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ। एक सवाल है मुफ्ती साहब करो। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम। ਜੀ ਵਾਲੇकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब निशान 85 ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਕਰੋ ਜੀ। ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ मिर्जा कादियानी कहता है जी, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 9 ਤੇ ਸਫਾ 158 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਨਾ ਨੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि जनाब अरब के लोग औरत की शर्मगाह को भी अबू दारस कहते हैं। उन्हें तो सवाल है दो ही इबारतां नूं मिला के मेरा सवाल है वे कि मिर्जे गुलाम कादियानी नूं अबू दारस कह सकने आ कि नहीं, यानी हजरत मसीह अबू दारस साहब। एक मसूमाना ते मौलवियाना मेरा एक सवाल है, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਮਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਸ਼ੋ ਪੰਜ ਪਿਆ ਮਖਮਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਮਖਮਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਨਿਸ਼ਾਨ 85, ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਇਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਇਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਾ ਹੁਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੋਇਜ਼ਾ ਹੈ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ 140 ਮੋਇਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਮੋਇਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, 3 ਲੱਖ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲਬਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 140 ਆਪਣੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 140 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹ ਲਿਆ ਆਵੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 85 86 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 140 ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 246 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ फरमाते ने जनाब एक मरतबा मैं कुलंज जहीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। लो जी, वो कहता है मेरी मकद से बवासीर की मर्द की वजह से 16 दिन तक खून आता रहा, यानी खूनी बवासीर, कुलंज जहीरी खूनी बवासीर। खूनी बवासीर और दर्द तो बाकी होती है ना, तो वो खुद कहता है मेरी सख्त दर्द हो रही थी जो बयान से बाहर।
लो जी, इसको वो कहता है ये मेरा मोइज है। अब फैसला करें आप, फैसला करें। और इतना यानी ये अजीबो गरीब इंसान है, इसी अपने मोइजे के बिल्कुल आखिर में वो जनाब एक इल्हाम भी उसका लिखा हुआ है कि वाह इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू। कुरान की आयत है बी सूरतिम मिन मिस्लिही, गालबन यही है, लेकिन ये इधर इसने डाल दिया फातू बी शिफाइन मिन मिस्लिही। कुरान की आयत कोई बदल के रख दी है। तो वो कहता है कि वो देखो ना जी, अगर ये जो शिफा हमने तुम्हें दी या वो रेत उसने मंगवाई थी और चिक्कड़ गारा बनाया गया, उसके अंदर हजरत जी ने टुबकी लगाई, तो बाद में उसकी मकद की जो बवासीर थी ना वो खत्म हो गई है। तो अब उसके ऊपर वो कहता है मुझे इल्हाम हुआ है कि अगर तुम्हें कोई शक है जो हमने उतारा अपने बंदे के ऊपर, मतलब मिर्ज़े कादियानी कज़्ज़ाब के ऊपर, तो फातू भी शिफा में मिसले ही, तो फिर इस शिफा की मिसल कोई शिफा लेके आ जाओ। चलो आप मुझे बताएं, आज आपके दौर के अंदर कितने मतलब लोगों को बवासीरें नहीं होती, उसकी गोलियां टीके और बड़ी बड़ी दवाइयां मरमें तैयार हो चुकी हैं, चुटकियों के अंदर बंदे को शिफा मिल जाती है। तो ये तो फिर मिर्ज़े कादियानी के ऊपर जो वही नाज़िल हुई थी, इल्हाम हुआ था, और वो एक चैलेंज जो था, जो दावा था, वो तो टूट गया, वो खत्म हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। जो सच्चे होते हैं ना, सच्चे होते हैं, उनके जो दावे होते हैं ना, वो कभी भी उनको कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, उनका दावा था और अल्लाह ने उनके ऊपर कलाम नाज़िल किया, उनको उनके बारे में फरमाया था कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, एक मिसल इसकी कोई एक सूरत लेके आ जाओ। आप देखें कि ये चैलेंज उन लोगों को किया जा रहा है कि जो अपने आप को अरब कहते थे और गैर लोगों को अजम कहते थे। वो अपने आप को कहते थे कि अहले जुबान, जुबान जिनके अंदर है ना वो हमारे पास ही है, बकाया जो अरब नहीं है वो सारे अजम है, यानी गूंगे, उनकी जुबानें नहीं है, जुबान का मलका उनके पास नहीं है। तो उधर बड़े बड़े शोरा और बड़े बड़े अदीब चैलेंज कर रहे थे, और पूरे अरब की सरजमी के ऊपर बड़े बड़े मुशायरे होते थे, बड़े बड़े जनाब अपनी अपनी शायरी के वो एक दूसरे को जनाब वो महफिल मुनक्कद करते थे, इनामात होते थे, बहुत कुछ होता था। और उनके मबैन कुरान नाज़िल हो रहा है और उसको एक चैलेंज के तौर पे पेश किया गया है कि अगर तुम समझते हो कि ये कुरान जो है ना अल्लाह की तरफ से नहीं है, किसी और की तरफ से है, तो इसकी मिसल किसी एक आयत ले आओ, एक सूरत ले आओ, एक आयत ले आओ। किसी के अंदर जुर्रत ना हुई कोई उसकी मिसल एक आयत भी लेके आता। एक शख्स आया, उसने कहा मैं ये चैलेंज कबूल करता हूं। तो उसने जनाब अल कारिया मल कारिया वमा अदरा का मल कारिया, इसके हम वजन एक सूरत तैयार की और उसका नाम रखा सूरतुल फील, यानी हाथी वाली सूरत। कहने लगा अल फील मल फील वमा अदरा का मल फील, यानी हाथी, हाथी क्या है और तुम क्या जानो कि हाथी क्या है। एक छोटी सी बच्ची पास खड़ी, जब उसने सुना तो वो मुंह पे हाथ रख के हंसना शुरू हो गई, कहने लगी कि ये कितना बेवकूफ है कि कौन नहीं जानता कि हाथी क्या है, ये क्या पढ़ रहा है ये।
सारी दुनिया को पता है हाथी क्या है। हाथी की 4 टांगे होती हैं, एक उसकी सूंड होती है, तो एक दुम होती है, बड़े बड़े कान होते हैं। सारी दुनिया जानती है हाथी क्या है। अब कुरान वो लफ्जों की तो जोड़ तोड़ करने बैठ गया, लेकिन कुरान की जो अफाकियत है, जो अफाकी कलाम है, उसका जोड़ तोड़ कैसे कर पाता कि एक वो गैब की खबर यहां पे बताई गई और वो क़यामत का मंजर कशी की गई और पहले से ही खबरदार किया गया कि वो अल कारिया, वो जलजले का जो दिन है, वो अल्लाह के कहर का जो दिन है, जो अल्लाह के जलाल का दिन है, वो तुम्हें तो पता ही नहीं है कि वो दिन है क्या। तो वो उसके लफ्जों की जोड़ तोड़ कर, यही काम मिर्ज़ा कादियानी ने कर दी है। वो लफ्जों की जोड़ तोड़ कर, फातू भी शिफाई में मिसले, तो ले आओ उसकी इस शिफा की मिसल कोई एक मिसल। अब यहां पर एक और हवाला मैं पेश करना चाहता हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी रूहानी खज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 170 के ऊपर कहता है कि हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ खातमे कुतुब समावी है और एक शोशा या नुक्ता इसके शराय और हदूद और अहकाम और अवामर से ज्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता है। आगे वो अगले लफ्ज जरा सुनिएगा तवज्जो से, कहता है और अब कोई ऐसी वही या ऐसा इल्हाम मिन जानिबिल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फुरकानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म की भी तब्दील या तगय्युर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो वो हमारे नजदीक जमात मोमिनीन से खारिज और मुल्हिद और काफिर है। अब बताओ कादियानियों, मिर्जा कादियानी मुल्हिद बना के काफिर, फैसला तुमने करना है। फातू भी शफा इम मिसले ही, उसने कुरान की, वो कहते हैं ये इल्हाम हुआ, सुबह के वक्त इल्हाम हुआ कि उसने कुरान की आयत को बदल के रख दिया है। जबकि मिर्जा कादियानी ने कहा था एक शोशा है और एक नुक्ता तक नहीं कोई इसका, ना ही कम हो सकता है ना ज्यादा। अब कोई ऐसी वही या इल्हाम नाज़िल ही नहीं हो सकता जो इसमें तगय्युर और तबद्दुल कर सकता हो, और जो ऐसा ख्याल भी करता है तो वो काफिर और मुल्हद और हो जाता है, जमात मोमिनीन से खारिज हो जाता है। तो मिर्ज़ा कादियानी को, अब कज़्ज़ाब को तुम मुल्हिद मानते हो कि काफिर मानते हो? बताओ, फैसला करो। हाँ भाई, हो गया भाई सवाल किन्ने कीता सी सवाल? नहीं, मैं सवाल किया माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त चलो। डिटेल से एक्सप्लेन किया, बहुत जबरदस्त, आला। ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਬਗ ਸੁਣਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਟੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਆਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਫੇਵਰਟ 49 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਚ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੋਗੇ ਯਾਰ। ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਆਖਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਫਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹਨ ਨੇ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਭ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਭਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੰਦ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਾਜ਼ੇ ਦੰਦਾਂ ਖਰਾਜੇ ਦੰਦਾਂ, ਦੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਰੇ ਦੰਦ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰ। आप आ जाए जी, मुफ्ती साहब आपको कुछ नहीं कहते, आओ सवाल करो आके, मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ कहते। ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਜੀ। आओ जी। नहीं सफिया बाजी आप आए, सवाल करें, कुछ नहीं कहते मुफ्ती साहब। अच्छा, तो मुफ्ती साहब माइक ही नहीं खोलेंगे। आ जाओ मुफ्ती साहब माइक ही नहीं खोलेंगे। अब मेरी जगह पे आए कॉल पे, अब मेरी जगह तो चुको इन्होंने। आओ जी आओ, सफिया सिस्टर आ जाइए। ਗਏ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਲ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਰਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ कि सोच भी नहीं सकता मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा जी, ये शेर खुदा साहब कोई अहमदी मर्द मालूम होते हैं, इनको चेक कर लें जरा, इनको देख लें हल्का सा। भाई मैं भी सोच ही रही थी आईडी की दी शेर खुदा साहब नहीं अगर मैं पता नहीं आपको किसने बोल दिया मैं अहमदी हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि आप कहते हो कि इज्जत करेंगे, वो बेचारे ऊपर आते हैं, आप उनके कपड़े फाड़ फूड़ के उनको बाहर भेज देते हो। नहीं मैं पता नहीं कहाँ से अहमदी हो गया। नहीं कपड़े नहीं फाड़ेंगे हम भाई, सवाल करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਈਡੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਨਾਬ? नहीं मेरी एफ आई डी है। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਵਾਇਰਲ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ। ਆਮਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ ਜੇ। ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਫੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਸਟਰ। ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ। वालेकुम सलाम। नहीं, मुफ्ती भाई ने कभी मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो एक उनका होता है ना कभी नारा, वो शुरू करते हैं, मैं उससे पहले भाग जाती हूँ, मुझे पता नहीं उसके बाद क्या कुछ होता है। तो वो अच्छा सवाल ऐसा है कि आज जिस तरह से आप लोग माशाल्लाह सब मिलकर बैठे हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि मेरा सवाल एक जगह पे ही एड्रेस हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैंने कभी पूछा भी नहीं किसका कौन सा फ़िरका है, लेकिन ज़ाहिर है हैं तो कई कुछ अलग अलग हैं। तो मैंने जगह बनाई थी, नीचे एक बंदा कह रहा था मुझे कॉल पे लें, तो इसलिए मैंने जगह बनाई थी, एक बंदे को उतारा था, लेकिन मॉडरेटर क्विकली किसी और को पिक कर लेते हैं। जी करें बात। तो हम लोग असेंबली की कार्रवाई पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर जो है जो 9 अगस्त का आया है, वो पूरा तकरीबन जो सेशन है ना शाम वाला, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। हमने ना जो अक्सर जज़ाकल्लाह। अच्छा आमिर भाई, देखें हम लोगों ने जो है ना आज तक ये सुना था टिकटॉक पे आके कि मिर्ज़ा साहब की ज़बान बहुत सख्त है, और वो जो है उन्होंने अपने मुखालिफों को बहुत सख्त ज़बान बोली हुई है। लेकिन जब मैंने ये वाला पोर्शन पढ़ा है तो इसके अंदर ऐसी सलीस उर्दू में आपस में जिस तरह बहन भाई लड़ते हैं ना किच किच, वैसे एक दूसरे को जो है ना फतावे दिए हुए हैं। बैठना हराम है, जो बैठेगा वो ये हो जाएगा, तुम्हारा मोटा पेट खाली पेट, ये तो वो, ऐसे मतलब ये तो मैंने बनाए हैं लेकिन आपने पढ़े होंगे वो। तो अब आप लोग कैसे उसको देखते हैं? उसके बाद अगर मिर्ज़ा साहब के जवाब देखें तो वो इतने सख्त नहीं लग रहे हैं, ठीक है वो सख्त थे जवाब, लेकिन ये फतावे, तो क्या आप लोग ये फतावे ऑन करते हैं?
और आपने पढ़े हैं वो फतवे जो सारे लिखे हुए हैं? नहीं, वो फतवा का मुझे पता है, लेकिन ये बम्बास्टिक साहब कह रहे हैं जी मुझे उठाओ। बम्बास्टिक साहब पहले बताएं वो मसला हल हो गया जो कल आप बता रहे थे कि भाई आप कंफ्यूज हैं और ख़त्म नबूवत का मतलब एक कहता है नबूवत जारी है, दूसरा कहता है नबूवत बंद हो गई है। मसला आप आपस में घर वाला हल हो गया है? अगर हो गया है तो आके बताएं ताकि मेरी तो जान छूटे ना। मुझे तो वो मियाँ साहब ने कहा है कि तुमने मुनाजरा ही नहीं अब किसी से करना जब तक ये आपस में तय नहीं कर लेते। तो कोई बताएंगे हो गया मसला हल कि नहीं आपका? आमिर भाई, मेरे होते हुए अगर आप इनको उठाएंगे तो फिर इनसे मुफ्ती साहब बात करेंगे, फिर मैं नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको पता है कि इनकी ज़बान की वजह से इनकी मौजूदगी में बिल्कुल भी नहीं अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं अभी नहीं उनको ले रहे। वो नीचे मैंने कहा कि आप मैसेज करके बता दें भाई, कल वो कह रहे थे कि हम आपस में कर लें। तो फिर मैं कुछ लोगों को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कि मतलब मैं उनको ना भी छेड़ूं, फिर भी उनकी एक्सट्रीम गंदी ज़बान है, इसलिए अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। ये जट नाम की आईडी किन की है जी? खोलें जरा माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल ने नज़ीर साहब? अल्लाह का करम शुक्र। और सुनाओ, सेहत तबीयत ठीक है? और भी ठीक है। की हुक्म है सर? हुक्म करो। बस ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ। दो टोक मकफ कादियानी बदतरीन काफर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾदियानी बदतरीन काफर ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਲਈਏ। ਸਹੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਹੇਲ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਸਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਹੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਸਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਇਸ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਏ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਮਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਬਰਕਤ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ अच्छा, ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आप ही सफिया को बुलाया है ऊपर, उनको पहले उनके सवाल को एड्रेस कर लें, फिर बाकियों को बाद में। आप जी उनके जी करें साथ करें साथ बात बात करें करें। माशा आप करें अपना ज़िया भाई, आप करें। नहीं, बड़े माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मुझे अगर इजाज़त देते हैं तो मैं कर देता हूँ। इजाजत है मुफ्ती साहब की तरफ से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सफ़िया सिस्टर ने वो गाली गलौज के हवाले से सवाल किया। पहली बात तो ये है सफ़िया सिस्टर के ये जो आप बयान कर रही हैं, ये एक आधा कोई लिटरेचर नहीं है, कोई बहुत सारा लिटरेचर ऐसा है जो कि जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। असल मामला जब हम कादियानियत के हवाले से बात करते हैं ना, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है उसने दावा किया है नबूवत का। गाली देना एक आम मुसलमान के लिए भी वो दुरुस्त नहीं है। चे जाए कि कोई आलम दीन दे या कोई बड़ा दे, कोई भी गाली दे वो बिल्कुल भी अच्छा फ़ेल नहीं है, अच्छा अमल नहीं है, उसको कोई भी जो है वो ठीक नहीं कहता। लेकिन जहाँ तक फतावा जात का मामला है, वो इस तरह है कि अगर जो जिन फतावा जात में ये इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, वो कोई बतौर कम्युनिटी, बतौर एक मसलक के सब के लोगों पर नहीं कहा गया, बल्कि जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था और उसने मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए, फिर बदज़बानी की, फिर शातमियत की। अब इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई फतवा देता है कि ये काफ़र है, इनके साथ निकाह जायज़ नहीं है, इनके साथ खाना पीना जायज़ नहीं है, तो इनकी औलादें हलाल नहीं हैं, तो ये देखें उसके अमल की बिना पर दिया है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई बंदा मुसलमानों में से कोई ऐसी हरकत करता है, कोई ऐसा अक़ीदा रखता है, तो ये उलमा कराम का जो है फ़र्ज़ मनसबी है कि वो उसके बारे में शरीयत का जो हुक्म है वो नाफज करें। लेकिन गाली गलौज जो है वो हर हाल में वो ठीक नहीं है, वो गलत है। अब एक आलम दीन अगर फ़र्ज़ करें कोई बहुत बड़ा आलम दीन है, वो गाली देता है, कंडेम तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन उसकी गाली का बबाल जो है वो उसके साथ है, मेरे साथ नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो जब गाली देगा, उसने दावा किया है नबूवत का।
جب وہ گالی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، نان مسلموں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو انبیاء ہیں وہ سارے نعوذ باللہ میری طرح کہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اچھے اخلاق کی، سچ بولنے کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کی، اگر کل کوئی بندہ مسلمانوں میں سے اٹھ کے ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے، کسی سے زیادتی کرتا ہے، کسی کو گالی گلوچ دیتا ہے، کسی کی چوری کرتا ہے، کوئی دوسرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اس بندے نے بھی چوری کی ہے لہٰذا میں نے کر لی ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ عام بندہ بھی نہیں یہ کر سکتا، نہ کوئی عدالت اس کو قبول کرے گی، نہ کوئی معاشرہ۔ مرزا صاحب نے دعوے کیے ہیں اتنے بڑے بڑے، اب جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کیا وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ بھئی جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے؟ آپ نے جو کہا ہے وہ کو دو چار آپ لائنیں یہاں پہ اگر کوٹ کر دیتی تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی زبان اتنی سخت نہیں ہے، میں آپ کو بالکل دعوے سے کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب جتنی سخت زبان کسی کو آتی نہیں ہے، آئے گی تو کوئی بیان کرے گا نا۔ اب یہ کہہ دینا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، جو دشمن ہمارے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، تو جو وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس طرح کی زبان کسی نے استعمال نہیں کی۔ تو مرزا صاحب اگر ایک عام کوئی بندہ ہوتا، عام کوئی مولوی ہوتا، وہ اس طرح کی گالی گلوچ دیتا تو ہمارا جو ہے اس کو کریٹیسائز کرنے کے لیے یہ ٹاپک نہ رہتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اس نے غلط زبان جو استعمال کی ہے تو اس کو دیکھ لیں آپ، جس بندے نے ماننا ہے مانے، جس بندے نے نہیں ماننا نہ مانے۔ یہی ہمارے علماء کرام کے بارے میں ہے۔ کوئی بندہ اگر بد کلامی کرتا ہے، عوام کہتی ہے کہ بھئی یہ بندہ بد زبان ہے، لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھئی ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ کیا مرزا صاحب کی بد زبانی دیکھ کے لوگ پیچھے ہٹے ہیں؟ اگر کوئی بندہ علماء کرام میں سے بھی کسی کی گالی کو ڈیفینڈ کرے، عوام میں سے بھی کسی عالم کی گالی کو ڈیفینڈ کرے، اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کہتا۔ تو بہرحال یہ جو باتیں اگر تو فتاویٰ جاتے ہیں کہ کسی کا نکاح حرام ہو گیا ہے، کسی کی اولاد جو ہے وہ حلال نہیں ہوگی، وہ تو ظاہر سے اس کا نتیجہ ہے کہ جس کی نکاح ہی نہیں ہے اس کی اولاد حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح فلاں کافر ہو گیا ہے، تو یہ تو ہیں فتاویٰ جات۔ لیکن ماں بہن کی اگر کسی نے گالی کی ہے، آج بھی ہم کنڈم کرتے ہیں، اور کسی نے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ اگر کوئی ماں بہن کی کسی نے گالی کی دی ہوئی ہے تو آپ کوٹ کر دیں، تو انشاءاللہ اس کے حساب سے جواب دیں گے۔ لیکن مرزا صاحب جو ہیں آپ کے سامنے دعویٰ نبوت کا ہے، مسیحیت کا ہے، اور یہ کہنا کہ جناب جو مسلمان دنیا کی قرآن کی تعلیم سے ہٹ گئے تھے، میں ان کو قرآن کی تعلیم پہ لے کے لانے کے لیے آیا ہوں، اور میں صحیح سچے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، پھر دینا گالی، تو اس کو کون بندہ جو ہے وہ صحیح کہے گا، اور کون کہے گا کہ بھائی یہ کوئی اسلامی کام کر رہا ہے؟ شکریہ۔ میں نے وہ کھولی بھی ہے، وہ ہم پروسیڈنگ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں اگزامپلس تو کافی ساری ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈائریکٹ گالی تو نہیں مجھے نظر آ رہی، لیکن اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ولد الزنا کا کوئی باپ نہیں ہوتا، عورت نہ ترکے کے حصے کی مستحق ہوگی، زانیہ کے لیے مہر نہیں۔ یہ دیکھیں صفیہ سسٹر، ایک بات سنیں، آپ نے بھی چونکہ کوٹ کیا ہے نا، تب میرے لیے بات کرنا آسانی ہو گئی۔ اب دیکھیں، ایک پاکستان میں بھی قانون ہے اور ایک اسلامی قانون بھی ہے ترکے کا، وراثت کا، یعنی اگر میرے والد صاحب وفات پا جائیں تو ان کی وراثت جو ہے وہ مجھے ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب علماء کرام کے سامنے جو ہے وہ ایک مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے، فلاں آدمی جو ہے، یہ ڈاکومنٹ میں اپنا نام جو ہے ولدیت میں فلاں بندے کو لکھاتا ہے، لیکن اصل میں یہ اس کا ہے نہیں، یہ کسی اور بندے کے ذریعے سے کے خون سے یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی کہ حرام ہے، ولد الحرام ہے۔ اب اس کی وراثت کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب بتائیں علماء کرام کیا کہہ دیں گے؟ دفعہ اوپر میں نہیں دستا مسئلہ۔ مطلب کہ ایک معاشرہ ہے اور اسلام نے معاشرے کے ہر پہلو کے لیے سلوشن، ہر مسئلے کے لیے سلوشن بتایا ہے۔ تو علماء کرام جب یہ بتائیں گے کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، یعنی کہ وہ جس کا نام لکھواتا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، باپ اس کا کوئی اور ہے، تو کیا نام لکھوا دینے سے باپ کی وراثت میں اس کو حق ملے گا؟ تو علماء کرام جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ بھی جو ولد الزنا ہے اس کا ترکہ ملے گا یا نہیں ملے گا، جو بھی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن لفظ تو یہی استعمال کریں گے نا کہ وہ حرام ہے، ولد الحرام ہے، یا ولد الزنا ہے، یا نجائز پیدائش ہے اس کی، کوئی بھی لفظ لکھیں گے۔
तो ये तो एक मतलब ये वो नहीं है कि वाकई में कोई वो मुसलमान के लिए ये बातें कह रहे हैं? जी जी, मुसलमानों में से भी हो सकता है ना इस तरह का मामला, ये जरूरी तो नहीं कि कोई गैर नहीं, वो मुसलमान असली में नहीं है, लाइक वो एक कोई फिरका कोई, मैं देखूं दोबारा उसको, राफजी कोई हैं, उनके बारे में कोई लिखा हुआ है किसी ने, और फिर उसके बाद काफी सारे, मतलब पूरे आपने पढ़ी होगी वो कार्रवाई। तो आप लेकिन आप कोट कर दें तो सारी याद नहीं रहती। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं है, हाँ कोट कर दें तो आसानी होगी। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ लोग जो हैं गैर मरूफ किस्म के लोग कुछ बातें इस तरह की कर जाते हैं जो कि मुतशद्दिद किस्म की। अब ज़ाहिर है असम्बली में आके तो जो या तो कोई नामवर आदमी हो, कोई मुतफिका किसी का फतवा हो, कोई मुतफिका किसी मकतबा फ़िक्र का आलिम दीन हो, तो उसके बारे में बात की जाए। अब इस तरह की बातें तो हज़ारों किताबों में लोग गैर मरूफ किस्म के लोग लिख देते हैं, अखबारों में लिख देते हैं, रिसालों में लिख देते हैं, तो उसको तो कोई रेफरेंस, वो तो कोई रेफरेंस नहीं है ना। भी मिर्ज़ा साहब ने गाली दी है माँ बहन की, तो देखें फ़लाँ अखबार में भी गाली लिखी हुई है, वो फ़लाँ एक किताब है जिसको कुछ जानता नहीं, को पता नहीं है, उसमें भी ये लिखी हुई है। कंडेमेबल है गाली देना, मैं पहले साफ बता चुका हूँ आपको। लेकिन इसको इस तौर पे पेश करना कि जी मिर्ज़ा साहब ने क्यों गालियाँ दी हैं, वो जी देखें इस किताब में भी गालियाँ लिखी हुई हैं, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। ये ना जैसे मैं अगर पेज नंबर यहाँ पे तो नहीं हुआ, मैं दे देती हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि तीसरा फतवा है बरेलवियों के ख़िलाफ़। वो तो शियों के ख़िलाफ़ था ना, मैंने बताया ना, सिर्फ 3 नमूने हैं। हम ये बरेलवियों के ख़िलाफ़ फतवा है, ऐसे जो लिखा हुआ मैं पढ़ रही हूँ। हम मोहम्मदियों के नज़दीक तमाम हनफी मज़हब के उलमा और दरवेश, मसलन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन देहलवी, बाब फरीद शकरगंज पाक पतन, निज़ामुद्दीन बदायवनी, मखदूम अली हजवेरी, कशफुल महजूब, सारे नाम लिखे हुए हैं, और सब जहन्नुमी हैं, काफ़ी सारे नाम हैं, और मुशरिक हैं और मुर्तद हैं, और चिश्तिया और कादरिया और नक्शबंदिया और सहरवर्दिया और चाहार पीरो चौदह खान, ये क्या है, खानबादी, सब इस्लाम से खारिज और वाजिबुल कत्ल हैं। ये लोग काहिन हैं और अदबार और दुहबान में से हैं, और हज़रत उमर ने जब 20 तरावी निकाली हैं, बड़ी बिद्दत का बल्कि जहन्नुमी रास्ता निकाला, बड़ी ख़ता उन्होंने की, वो मासूम ना थे, हालांकि अम्बिया भी। सॉरी किसी को अगर बुरा लग रहा है मैं पढ़ना। नहीं, मैंने सिर्फ हवाला पूछना था, ये आप कहाँ से पढ़ रही हैं, कोई हवाला दे दें ताकि हम भी देख लें। जी 1974 की कार्रवाई बिलाल हनीफ के साथ मिलकर हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा आज का ये पोर्शन था, पेज नंबर। नहीं वो तो ठीक है, कोई हवाला, हम तो आज पहले दिन आए हैं, कोई बता दें ताकि हम भी निकाल लें, हम भी मुस्तफीद हो जाएं। नहीं इसमें कोई नहीं, ये वाला पोर्शन में नहीं मुस्तफीद। कोई जिल्द नंबर, कोई सफा, कोई 5 जिल्दें हैं उसकी। 732 9 अगस्त 1974, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पता नहीं क्या पढ़ रही हैं आप, कोई समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं आप बता रहे हैं और साथ डेट बता रही हैं कि उस डेट के नहीं है, नहीं है ते कितों पढ़दे हो पे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ये कार्रवाई? वालेकुम मुफ्ती साहब, ये हो सकता है ये हवाला जो है मुफ्ती साहब मिर्जा नासिर ने अपने जवाब में दिया था, ठीक है जी। तेरी खैर वही ना, मैं ना आए पता नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜਦੇ ਨੇ। 1974 ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ 1974 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਲੈ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਲੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਭਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਕੋ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ? बच्चा यहाँ पर ना जो असल नहीं हवाला तो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा 3 हवाले हैं। आप कहाँ से पढ़ रही हैं? आपके पास कोई PDF है? जी मुफ्ती साहब, एक PDF कहाँ से ली है आपने? 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 732 732 ਤੇ ਜਿਲਦ 32, ਜਿਲਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਲਦ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਲਦ ਯਾਰ 5 ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, 5 ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ PDF ਵਾਲੀ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹੀ PDF ਚਲੋ ਲੱਭ ਉਹਦੇ ਲੈਨੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿੰਟ। ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ 732 ਸਫੇ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬੇ ਯਾਹਿਆ ਬੁਖਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। दिस ठीक है ठीक है। जी जी ये लिखा है, ये लिखा है। मिर्जा नासर और सिर्फ ये बताना मकसूद है कि इस जमाने में एक फिरका दूसरे फिरके के खिलाफ बड़ी सख्त गोई से काम ले रहा है। और ये पहले से बात चल रही है, कुछ पेजेस देखे। हाँ चले ठीक है, ये हवाला topic- आगे आप बात करें, आप करें। अच्छा, ये सारे हवाले जो उन्होंने पेश किए थे, ये अभी बताया ना जो काजमी भाई ने, ये वही बात मैं कर रही हूँ। तो इसके ऊपर बस बता दें, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये फतवे वाली जो बात है ना सफ़िया सिस्टर, वो पहले तो एक बात ये आप जहन में रख लें, फतवा देना जो है वो आलम दीन, हर आलम दीन का इख्तियार में नहीं है। शायद आपको इसका पहले इल्म हो या ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे उलमा होते हैं ना, मुबल्लिगीन, जो कि मदारस में होते हैं, मसाजिद में होते हैं, तकारीर जिनकी आप सुनते हैं, हर बंदा ये फतवा देने का अहल नहीं होता। इन्होंने दरस निज़ामी किया होता है, दौरा हदीस शरीफ किया होता है, दौरा कुरान शरीफ किया होता है, लेकिन मुफ्ती फतवा देने का अहल होने के लिए इस सारे कोर्सेज़ के बाद एक तखस्सुस का कोर्स होता है 2 साला। वो स्पेशलाइजेशन यानी कि मुफ्ती बनने के लिए होती है। जिस बंदे ने वो किया हो वो अहल होता है, उसकी बाकायदा सनद जारी की जाती है कि भाई ये बंदा फतवा देने के अहल है। अब मिंबर पे बैठ के राह चलते किसी महफिल में कोई बंदा या कोई ऐमी मेरे जैसा बंदा उठ के किताब लिख दे और कह दे जी मैं फ़लाने को भी काफिर हम मानते हैं फ़लाने, उसकी बात नल एंड वाइड है, उसकी बात की कोई अहमियत ही ना, कोई उसको बात को मानता। फतवा वो होता है जो बाकायदा एक अथेंटिक मुफ्ती दे, और वो तहरीरी होता है, उसमें जो जिस बंदे पर फतवा दिया जा रहा है, उसके जिस बात पे फतवा दिया जा रहा है वो लिखी होती है। फिर उस बात के बाद फ़र्ज़ करें मैंने कोई बात की है, अब उस पर कोई फतवा लगता है, तो मुफ्ती जब फतवा देगा वो पहले मुझसे राब्ता करेगा, मुझे मेरा मौक़िफ़ पूछेगा कि भाई आपके बारे में ये बात आई है कि आप इसके बारे में ये कहते हैं। मैं बताऊंगा कि भाई इसका मतलब ये नहीं वो है, ये नहीं वो है, ये जो भी मतलब है। फाइनल डिस्कशन करने के बाद जब उनको पता चलेगा कि भाई ये तो वाकई कुफर साबित होता है, वो मुझ पे तौबा पेश करेंगे कि भाई ये कुफर है, आप इससे तौबा कर लें। अगर मैं हट दरमी पे कायम रहता हूँ, फिर वो सारी कंडीशन लिख के कुरान हदीस के हवाला जात के ज़रिए कि भाई इसने ये बात की है, कुरान हदीस के इस हुक्म के ख़िलाफ़ ये बात जाती है, लिहाजा इस पे कुफर लाजम आता है, तो ये बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। ये तरीका होता है फतवा देने का। अब इस तरह की देखें अखबारों में भी, गैर मरूफ किस्म की किताबों में भी और तकारीर में भी लोग ऐसे बैठे हो फलाना भी काफिर है, फलाना भी काफिर है, फलाना भी काफिर है। उनकी इस बात की कोई अहमियत नहीं, ना अथेंटिक है, ना कोई उनको मानता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इस बात को प्रूव नहीं करती कि हम आप किसी एक जय्यद मुफ्ती का फतवा नहीं दिखा सकती जिसने किसी पूरी दूसरी कम्युनिटी को काफिर या दायरा इस्लाम से यानी दूसरे मसलक के लोगों को, ना किसी देवबंदी का ऐसा है जिसने सारे के सारे बरेलवियों को काफिर करार दिया हो, ना किसी बरेलवी का है जिसने देवबंदियों भाभियों को काफिर करार दिया, ना किसी भाभी का है जिसने दूसरे सारों को काफिर करार, एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजें सिर्फ जो है ना वो प्रोपेगेंडा करने के लिए, बल्कि इसके ऊपर आपको याद होगा मुफ्ती साहब एक सेकंड सिर्फ एक गल इस पे बकायदा तौर पर गल कर लिया जे बाद चो हुक्म सिर्फ है जी ये अल्लाह वसाया साहब दी ओदी जिल्द 2 में ते उत्ते वाला सफा जड़ा वे 796 ते थल्ले वाला सफा 70 है। ठीक है, ते ए जड़ा हवाला पुरानी ते नवी दोवां दा सामने आ गया। चलो हुण कर लो गल। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਖਸੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਯਾਦ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਮ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ठीक है, तो ये बेसिकली फिरका कार्ड खेला गया है, सीधी बात है कि वहां पर जी ओ जी फलां नूं फलां भी कहंदा, फलां नूं फलां भी कहंदा, ए ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਇਹ वही बात है कि फॉर एग्जांपल ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਨਦ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ।
अच्छा, ये जो महदर नामे वाला ढिंडोरा सारा दिन पीटा जाता है ना, महदर नामा नहीं, हमारा महदर नामा नहीं, ये मंदरजात महदर नामे के ही हैं। ये जो जितने ये मिर्ज़ा नासिर साहब सुना रहे हैं ना, ये वही महदर नामे के ही मंदरजात हैं जो पढ़ के सुनाए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही। हम सब कह तो रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई पढ़ी है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि उसी पेज पर 732 के अंदर मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमुल्लाह जो है वो जवाब दे रहे हैं कि मसीह मौत की गालियों के मुकाबले पे उम्मतियों की गालियां ये जस्टिफाइड है। ज़िया भाई ने सबसे पहले कही है ना, यही बात से तो बात शुरू की है ज़िया भाई ने कि भाई आप देखें कि जिस बंदे की गालियों का जिक्र हो रहा है वो मनसब नबूवत का है। वो कहता है मुझे आम मौलवी की हैसियत समझो ही ना, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मैं आम मौलवी हूँ ही नहीं, मेरी तो मिसल जो है वो सुनने अम्बिया की सी है। अब सुनने अम्बिया वाला बंदा जो है वो इस तरह के अखलाक से बात करेगा तो उसके जवाब के अंदर मतलब आप किसी मतलब आलिम का पेश करेंगे। तो बेसिकली आप देखें कि मिर्ज़ा नासिर जो है वो तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की हैसियत को एक आम मौलवी के साथ डिस्कस कर रहा है, एक आम मुफ्ती के साथ डिस्कस कर रहा है। तो ये तो मतलब टक्कर का मुकाबला बनता ही नहीं है। और सिस्टर एक बात जो है ना वो इसको माइंड में रखा करें, आप माशाल्लाह गुफ्तगू भी करती हैं, वो ज़हन में रखा करें कि मिर्ज़ा साहब के हवाले से जितनी भी चीज़ें हम पेश करते हैं ना, ये बतौर एक इंसान नहीं होती। यानी मिर्ज़ा साहब की शातमियत, अब शातमियत तो और भी लोग करते हैं, दुनिया में मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब की गाली गलोच और भी लोग करते हैं, मिर्ज़ा साहब के झूठ और भी लोग झूठ बोलते हैं। इस तरह मिर्ज़ा साहब के बारे में नेगेटिव जितनी भी बातें हैं वो मुख्तलिफ लोगों में कोई ना कोई बात पाई जाती है। मिर्ज़ा साहब के सामने ये बातें इसलिए उनके उम्मतियों को पेश की जाती हैं कि ये सारी बातें नबूवत के मनसब के बरक्स हैं, ख़िलाफ़ हैं। यानी कोई शख्स नबूवत का दावा करते हुए इनमें से किसी चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल रखता है तो ये इस बात का एक प्रूफ बन जाता है कि वो बंदा अपने दावे में सच्चा नहीं है। क्योंकि अंबिया हर किस्म की बुराई, झूठ, फरेब, गाली गलोच, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी तबलीग करते हैं, उसके ख़त्म करने के लिए, ना कि वो खुद नौज़ुबिल्लाह इस तरह के काम करने लग जाएं। तो ये मिर्ज़ा साहब के सामने सिर्फ इस वजह से पेश किया जाता है क्योंकि उसका दावा नबूवत का है। अगर उसका दावा नबूवत का ना होता तो उसको इसी तरह लिया जाता जिस तरह आम लोग गालियाँ निकालते हैं। तो जो मिर्ज़ा साहब ने भी काट ली थी, चलो ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना, लोग कहेंगे बदज़बान सी, लेकिन नबूवत का दावा इससे मिर्ज़ा साहब का गलत होता है, इसलिए पेश करते हैं। सॉरी। अच्छा, एक चीज़ है सिर्फ कि ये जो है ना बहन, ये हमेशा ये रवैया ना हमारे साथ इख्तियार करते हैं आपके अहमदी भाई बहन सारे लोग कि हम मिर्ज़ा साहब को पेश करते हैं, वो हमारे आगे कोई ना कोई बुज़ुर्ग कहीं ना कहीं से कोई तहरीर कोई भी किसी की भी उठा के ले आते हैं। एक उसूल जो है ना, इसके ऊपर आप देखें, इस चीज़ को पल्ले बांध लें, किसी भी मुसलमान को आप उठा लें, जिसकी भी तहरीर ये आपके सारे भाई लोग लगाते हैं, एक सवाल आप जाके उस मुसलमान से पूछ लें कि क्या जिस मर्तबे पे आप लोग मिर्ज़ा साहब को मानते हैं वो मुसलमान अपने उन बुजुर्ग को उसी हिसाब से रसूलुल्लाह के साथ उसी तरह कंपैरिजन करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं आपको पूरी उम्मत की तरफ से 100% श्योरिटी और गारंटी देता हूँ, कोई बंदा नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। किसी भी मकतबा फ़िक्र के कितने भी बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, वो वैसा मर्तबा समझते नहीं है जैसा अहमदियों ने मिर्ज़ा साहब के लिए क्लेम किया हुआ है। तो जब चीज़ें बराबर, वो आपने वो सुना होगा ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, जब वो चीज़ ही नहीं है तो इसका मतलब है ये फिर टाइम ज़ाया करने के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें। इट्स जस्ट अ स्मोक स्क्रीन के मुद्दे से भटकाने के लिए वक्ती तौर पे आप किसी को किसी चीज़ के पीछे लगा देते हैं कि भाई इसमें उलझे रहो आप, समझें? दिफा करते हैं वो लोग। नहीं, ये तो पॉइंट समझ आ गया जी, सॉरी। लेकिन आप लोग जैसे ये फतवे पढ़ के ना रिया भाई ये भी बताएं क्या आप लोग इनको कोई अहमियत नहीं देते आपस में? ठीक है, मुझे समझ आ गई कि एक नबूवत के दावेदार और एक आम इंसान में फ़र्क है, चाहे वो किसी भी रुतबे पे हो, लेकिन क्या आपस में भी ये सब होता रहता है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सुना है ना टिकटॉक पे भी और प्राइवेट में भी कि यहाँ से निकल कर कौन से फ़िरके में जाना है, तो ये फ़िरका नॉर्मल लाइफ स्टाइल है आप लोगों का? जी सफ़िया सिस्टर, बिल्कुल 100% हमारा नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। देखिए, मुसलमान जो है बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है और आपको पता है कि हर माशरे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। आपको ऑथेंटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जवाब दे
जी जी। बाजी फिरके में जाना है, ये आप लोगों को ना रटाई गई हैं ये बातें, आपको वर्गलाया गया है, आपको अजीब चीज के अंदर फंसा दिया गया है। ये इस्लाम पूरा का पूरा ही एक फिरका है। मतलब आप कह रही हैं जी, मतलब इस्लाम से ही निकल के तो इस्लाम के अंदर किस फिरके में जाए? भाई इस्लाम में कोई फिरके है ही नहीं, इस्लाम खुद एक फिरका है। इस्लाम के अंदर मजीद फिरके तो नहीं ना। आप एक ऐसा सवाल कर रही हैं कि एक मछली है वो पानी के अंदर है, तो वो कह रही है कि मैं पानी के अंदर जाना चाह रही हूं। भाई तू पहले ही पानी के अंदर है, अब वहां से निकल के और किधर जाएगी? मतलब अजीब सा एक सर सवाल है कि इस्लाम भाई फिरका कैसे? मैं शाह जी मैं मैं अर्ज थोड़ा जिहा करता ਇਹਨਾਂ हूं ਨੂੰ ਨਾ इसके ऊपर, ਦੱਸਣਾ। मैं अर्ज शाह करता जी हूं। ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ। ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, हदीस सुनाने लगा तो ਉਹਦੇ ਚ ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ आ जाएगी। बाजी ये तिरमजी की हदीस पाक है और हदीस का नंबर है 3532। नोट कर लें, नोट कर लिया आपने? कोई हाँ ना करेंगी तो फिर ही मैं कुछ बोलूंगा ना। जी जी कर लिया। 3532 है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने पैदा किया ना, अल्लाह ने बनाया, तो वो सारा किस्सा और कहानी हजूर इस हदीस के अंदर बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने फी खैरिहिम फिरका, जब अल्लाह ने अपनी खलकत को तख्लीक किया, मखलूक बनाई, तो उसके मुख्तलिफ फिरके बनाए, तो उन फिरकों के अंदर जो सबसे बेहतरीन फिरका था ना, उस फिरके के अंदर मुझे बनाया। सुम्मा जाअलहुम फिरकातैनी फजाअलनी फी खैरिहिम फिरका, फिर उस बेहतर फिरके के भी अल्लाह ने 2 फिरके बनाए, उन 2 में से भी जो बेहतर था उसके अंदर अल्लाह ने मुझे बनाया। अब ये देखिए कि ये पूरी दुनिया जो है ना, ये इसके फिरके अल्लाह ने खुद बनाए हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये पूरी दुनिया को ग्रोह दर ग्रोह तकसीम जो की है ना, वो अल्लाह ने खुद की है। तो इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि फिरके किसने बनाए। तो फिरके ये बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, ये इंसान के बनाए हुए फिरके नहीं है। एक तो इस सवाल का जवाब मिल गया। अगला ये कि उनमें से कोई ईसाई बना दिया, किसी को यहूदी बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुल्हिद बना दिया, किसी को कादियानी बना दिया, तो किसी को मुसलमान बना दिया। तो इस्लाम एक फिरका था, उस फिरके के अंदर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया अल्लाह ने। ठीक है, तो ये सारी जो है ना वो हदीस भी है जो 73 फिरकों वाली, तो उसमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं ना कि मेरी उम्मत जो है ना वो अन करीब 73 फिरकों के अंदर बट जाएगी। सतफ तारीकु उम्मती, यानी मेरी उम्मत। तो ये जो मेरी उम्मत फरमाया ना, वो उम्मत ये पूरी दुनिया ये हजूर की उम्मत है और उम्मत दावत के अंदर शामिल है। तो पूरी उम्मत के जो है ना उसके 73 फिरके हैं, यानी 73 मज़ाहब कह लें इसको, 73 आप जो भी कह लें। हदीस के अंदर तो फिरके का चूंकि जिक्र है तो फिरके ही कह लें आप। तो ये है असल में वो 73 फिरके। उन 73 में से जो एक नाजी फिरका है ना, वो है इस्लाम। तो इस पूरे के पूरे इस्लाम ने जन्नत के अंदर जाना है, बकाया 72 ने जहन्नम के अंदर जाना है।
हाँ, इन ये जो 73वां फिरका है नाजी फिरका यानी इस्लाम, तो उसके अंदर भी जो जिसकी कोई गलतियां कुताइयां होंगी वो जहन्नम में तो जाएगा लेकिन अपनी सजा भुगत के वापस आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा, जन्नत में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये है हमारा मौकफ। 19-20 हर जगह होती है, तो वो गलतियां कोई करता है, कुताही करता है, किसी ने मिसाल है फर्ज कर ले कि कोई कत्ल किया है या मतलब कोई ज़िना किया है, शराब नोशी की है, बड़े बड़े गुनाह कबायर, तो वो अपनी सजा भुगत के वापस आएगा ना, जन्नत में आ जाएगा। तो इस्लाम पूरे का पूरा एक फिरका है और आप लोग को ये रटाई गई है तोतों की तरह ये बात जी, यहां से निकल के हम किधर जाएंगे, कौन से फिरके में? भाई एक ही फिरका है ना, वो तो फिरका मिर्ज़ा कादियानी ने बनाया था ना, कादियानी फिरका जदीदा। हाँ, वो आप कह सकती हैं कि उन 73 के अंदर शामिल है, उम्मते दावत के अंदर ये लोग भी शामिल है, कादियानी भी शामिल है, ये भी मेरे हजूर के उम्मती हैं, जैसा कि मुल्हिदीन, ईसाई, हिंदू, ये सारे मेरे हजूर के उम्मती हैं। तो उस उम्मते दावत के अंदर कादियानी भी शामिल है। हाँ, ये आपने करना है कि अब उस फिरके से निकल के फिरका इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, बस मैंने यही कहना था। सवाल बात कर लिया मैंने, माइक म्यूट कर लिया जी मुफ्ती भाई। अच्छा वो सिस्टर, एक आपने मैं अच्छी आपकी बात जो एक छोटी सी बात आपसे करनी है, बस एक दो बातें आपसे पूछनी है। आप कोई मुसलमान हो और एक हिंदू जो है वो आ जाए, उसके सामने नमाज का टाइम हो जाए, हिंदू सामने खड़ा हो जाए जी मैंने इमामत करवानी है, क्या मुसलमान उसके पीछे नमाज पढ़ लेगा? नेवर। तो इसी तरह आप भी, अगर आप अहमदिया जमात में होती तो आप भी ज़ाहिर है उसके पीछे ना पढ़ती क्योंकि वो काफिर है। ईसाई के पीछे भी आप नहीं पढ़ती क्योंकि वो काफिर है। जो बात आप बयान कर रही हैं कि हम एक दूसरे को कुफर के फतवे देते हैं, ये हमारे इसी ब्राड के अंदर देवबंदी भी बैठे हुए हैं, बरेलवी भी हैं और अहले हदीस भी हैं, वाबी जिनको कहते हैं। ये वाबी मेरे ऊपर बैठा हुआ है, ये भी, मैं भी, खुद भी, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ। अच्छा भाई, तुसी तो देवबंदी हो। मेरे हमारे जो रिश्तेदार हैं उनमें अहले हदीस हैं। मैं जब कभी उधर जाता हूँ तो उनके पीछे नमाज पढ़ता, बल्कि मैं जब लाहौर में पढ़ता था तो जिस जगह मेरा हॉस्टल था साथ ही उनका जो है वो मस्जिद जो छोटी सी थी वो अहले हदीस की थी, सारी नमाजें हम उधर ही पढ़ते थे। अगर हम इनको काफर समझते होते, देव बरेलवी अहले हदीस को, वाबी को काफर समझता होता तो हम उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ते? और यही आपको मसाजिद में मिलेगा। कुछ चंद मुशद्दद किस्म के लोग होते हैं यार ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਆ ਜਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਬੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਵਬੰਦੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ 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 ਫਿਰਕਾ। गैर मरूफ किस्म के लोगों के जो फतवे हैं ना, उनकी ये अहमियत आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो बस हवाई बातें हैं उनकी। अच्छा ये भाई मेरी जरा स्क्रीन बड़ी कीजिएगा बाजी, एक मिनट रुके, मैं आपको ना एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे भी मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप जाके ना ये चेक कर लीजिएगा हवाला। हो गए मेरे जी वो अभी सवाल वो सारे बैठ जाते हैं इंशाल्लाह। एक मिनट सिर्फ मुझे मौका दें, ये आप नोट कर लें, ये दूसरा हवाला ये ले लें। एक तो हदीस आपको मिल गई है 35-32 नंबर तिरमिजी की, वो भी देख लें, उसमें फ़िरका तैन का लफ्ज़ है। जिन अल्फाज को मुफ्ती साहब ने यूज़ किया है, कुछ हमारे नीचे भाई जो है ना वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं इस बात को। रेफरेंशियल पॉइंट मुफ्ती साहब का बिल्कुल दुरुस्त है। 2 ग्रोह अल्लाह ने बनाए और जो उनमें से सबसे बेहतर ग्रोह था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये आप चेक करें कि मिर्ज़ा साहब ने जब पादरी को जवाब दिया है तो वो क्या जवाब दिया। पादरी साहब पूछते हैं, पादरी स्कॉट था, मिर्ज़ा साहब को मिला, ये आप देखें मलफूजात है, जिल्द नंबर इसकी हफ्तम है, ठीक है, 7वीं जिल्द है, ये बिल्कुल जो लेटेस्ट इसका एडिशन है, उसका सफ़ा नंबर है 27। वहां पर यही बात चल रही है पादरी के साथ ना, पादरी के साथ बात चल रही है। पादरी का सवाल है येलो के अंदर हाईलाइटेड, ये जरा सुनिएगा क्या कहता है पादरी स्कॉट। आप लोगों में बहुत से फिरके मौजूद हैं, ठीक है जी, ये वही बात है जो आप पूछ रही हैं, आप लोगों में बहुत सारे फिरके मौजूद है, किधर जाऊं, ठीक है जी, ये वही सवाल किया पादरी ने।
اس کا جواب مرزا صاحب نے کیا دیا ہے کہ جی حضرت اقدس انہوں نے کیا جواب دیا, مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, کہ آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں. تو یہی جواب ہے کہ باجی آپ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا قادیانیوں میں کتنے فرقے ہیں. لاہوری پارٹی, صلاح پسند, سبز احمدیت, گوری احمدیت, براؤن احمدیت, بہت سارے ہیں, اب تو مطلب گنے بھی نہیں جا سکتے. اچھا وہی جواب, جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. اب لاہوریوں کی تکفیر نہیں کی مرزا بشیر الدین محمود نے, ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہوئی ہے. کیا لاہوریوں نے نہیں کی ہوئی, ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہوئی ہے. کیا جمبا صاحب والے کہتے نہیں ہیں کھلے عام, بلا لیں ابھی یہاں پر طارق چوہان صاحب کو, وہ کہیں گے فاسقین کا ٹولہ ہے, کافر ہے, پکے کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اچھا آگے یہ ہے اصل اصول, اب جس کے اوپر ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے اور جس کے اوپر ضیاء بھائی بات کر رہے تھے, وہی بات اب آنے لگا آگے. جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصول میں بھی متفق نہیں. اب ایک ہوتا ہے دین کا اصول, یہ بھی مفتی صاحب اس کو ایکسپلین کریں گے میرے سے بہتر کہ اصول دین کیا ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات میں ہے. یعنی میری سکرین بار چھوٹی ہوگی, ذرا بڑی کرنا اہیر بھائی. ہاں اب یہ ہے جواب, اور اس جواب سے میں متفق ہوں. کیا ہے جی جواب مرزا صاحب کا, اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جزیات میں ہے, اصول سب کے ایک ہی ہیں. اصول سب کے ایک ہی ہیں. یہاں سے کیا بات پتہ لگتی ہے, یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ فرقے کی بنیاد ہوتی ہے اصول کی بنیاد کے اوپر. اصول سب سیم ہوتے ہیں, کوئی تنے کا حصہ ہوتا ہے, کوئی شاخ ہوتی ہے, کوئی جڑ ہوتی ہے. ہر درخت کا جو پورشن ہوتا ہے اس کا کام مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے بریلوی مسلمان بھائی ہیں جو ان کا کام مدح سرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے جی, اہل بیت کے لیے جو دل میں درد رکھتے ہیں اہل تشیع ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اسی طریقے سے توحید کا پرچم بلند کیا ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے, تبلیغ کا پرچم بلند کیا ہمارے دیوبندی بھائیوں نے. اس طرح اور مختلف آپ دیکھ لیں, ہر ایک کا کام مختلف ہو سکتا ہے, اصول سب کا کیا ہے, ایک ہی ہے. اصول دین کے اوپر ابھی مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے, وہ آپ کو گنوا بھی دیں گے اور بتا بھی دیں گے. آپ کوئی ایک اصول دین لے آئیں جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے اندر ڈفرینشیشن ہوتی ہو اور سارے مسلمانوں نے اجماعاً ان کو کافر نہ کہا ہو, ایک لا کے ہمیں دکھا دیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بھائی 1 منٹ ٹائم مل سکتا ہے؟ ابھی نہیں مل سکتا بھائی, پہلے بات پوری ہو رہی ہے, ان کی پوری ہو لینے دیں, آپ ویٹ کریں. باقی بھی لوگ خاموش بیٹھے ہیں, آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے, تشریف رکھیں. میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ جو مفتی صاحب نے بات سمجھائی ہے نا, وہ بالکل الگ طریقے سے 73 والی وہ حدیث بھی, لیکن جب ہم فرقہ کہتے ہیں تو فرقہ تو میرے دماغ میں فرق آ جاتا ہے. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقوں میں بٹنے سے کیوں منع کیا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ جی وہ یہ مسلمانوں کو, یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے نا باجی, کہ عیسائیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے, بتائیے گا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. مسلمان. یہ آیت کن کو مخاطب اللہ نے کی ہے؟ جی مسلمان. ہاں, وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایک فرقہ جو ہے نا, یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی یہی جو رسی ہے نا, یہ فرقہ جو اسلام ہے, اس کے اندر قرآن ہے, اس کو مضبوطی سے تھام لو تو مزید آگے سے فرقے نہ ہونا. وہ یہ ہے, یعنی اسلام کو چھوڑ کے تم عیسائی نہ ہو جانا, یہودی نہ ہو جانا, تم ہندو نہ ہو جانا, وہ یہ ہے اصل میں, بس اور تو نہیں ہے کچھ. جی باجی اور کوئی سوال ہے؟ اچھا مزے کی ایک بات ہے باجی, اگر اجازت دیں تو شاہ صاحب تھوڑا سا میں اس کو اور کھلا دوں اگر, مفتی صاحب, وہ یہ ہے کہ وہ سورہ انعام کی آیت پیش کر دیں ان کو, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. ہاں جی. اچھا بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ فرقے, یہ جو فرقے کی رٹ لگاتے ہیں نا, فرقے کی رٹ لگاتے ہیں, یہ اصل میں قادیانیوں کا چھوڑا ہوا ایک شوش ہے. آپ دیکھ لیں, یہ ہسٹری آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے, ہسٹری اصل میں جو تاریخ ہوتی ہے نا, وہ ایک آئینہ کی صورت میں ہوتی ہے, جس میں جو اقوام عالم ہے وہ اپنے چہرے کے خد و خال کو درست کرتے ہیں, جس کو دیکھ کے. تو تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے. مرزا قادیانی سے پہلے کبھی کسی نے کوئی فرقے کی رٹ لگائی ہو تو بتا دیں, کوئی ایک حوالہ دے دیں. نہیں ملے گا آپ کو, کہیں نہیں ملے گا, جائیں.
किसी ने कोई कहा हो कि फिरकों की कोई रट लगाई हो? जो इस असेंबली की कार्रवाई में मिर्जा कहा मिर्जा हुआ है, कादियानी से पहले कोई एक हवाला, एनी वन। जी बाजी, मैं चैलेंज करता हूँ। मुफ्ती भाई ये उन्होंने ये फिरकों की रट तो मिर्जा कादियानी ने लगाई थी चित्रालवी। जी। मेरा सवाल यही था, अल्फाज थोड़े नहीं, से यार एक मिनट यार फैसल, मुफ्ती साहब अगर ये फिरके आप बोल रहे हैं तो ये फिरके यार भाई, इस्लाम एक के मिनट फिरकों ठहरो की यार, भाई बात आप हो रही है। कौन है भाई? आपको कोई तमीज है? मैं यार में एक बैठने की बंदे ਨੂੰ आपको ਬੋਲਣ उतारूंगा ਦਿਓ नीचे। ਯਾਰ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ साहब। ਬਾਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ भाई। अच्छा बाजी, एक चैलेंज है आपको, वैसे यकीन मन, मिर्जा कादियानी से पहले किसी ने फिरके की कोई बात की हो कि मुसलमानों के अंदर फिरके बन गए, तो बता दें आप, कोई एक हवाला दे। मेंशन किए हुए हैं जैसे बरेलवी, चकरालवी। हाँ हाँ, ये किसने बात की थी? ये तो मिर्जा कादियानी से पहले किसी ने तो नहीं की, वो- मिर्जे ने की है, मिर्जे ने जरूर की है। हाँ, ये जो एक फिरका 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 की जो रट्टे थी ना, ये बाद में लगनी शुरू हुई हैं, और मुसलमानों के हलके में भी ये चीज फिर फैल गई थी, जबकि इससे पहले तो नजर भी नहीं आती कहीं पर भी कोई फिरका फिरका तो था ही नहीं। कोई है तो बता दे, आप हवाला दे दे। ये सारे नाम जो उन्होंने दिए हुए हैं इन पेजेस ये में, मिर्जा साहब ने आप दिए देखिएगा, हैं, ये कादियानियों ने दिए हुए हैं। बरेलवी, चकरालवी, हाँ हाँ, राफसी ये और ये कादियानियों सब। ने बनाए थे। ये मिर्जा साहब ने अपने मजमूम मकासद की को पाने के लिए उन्होंने ये नाम दिए थे। किसी को वाबी बना दिया, किसी को शिया बना दिया, किसी को बरेलवी बना दिया, किसी को देवबंदी बनाया। ये उससे पहले नहीं मिलते आपको, कहीं पर भी आपको मिलेंगे तो बता दे, है ही नहीं। मैं चैलेंज के तौर पे इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, है ही नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मुफ्ती भाई यहाँ पे देखें ना, इसका वो ये सबसे नाम बड़ा तो लिए हुए हैं। सबूत बाजी, इसका सबसे बड़ा सबूत सैयद पीर मेर अली शाह साहब, जब मनाजरे का जब जिक्र हो रहा था, शाह साहब तौसीह कर देंगे अगर गलत करूं तो, उस वक्त जो 3 जज उस मनाजरे के, जिसके अंदर एक कुर्रे से एक सूरत निकालनी थी और उसका अरबी में तफसीर लिखनी थी, वो जो 3 उलमा किराम तजवीज़ किए गए थे, उसके ऊपर सैयद पीर मेर अली शाह साहब ने कहा था मुझे एतराज़ ही क्यों नहीं। उनमें से एक मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब थे, जो मशहूर अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है जी, तो ये बातें छोड़ दें। सैयद पीर मेर अली शाह साहब ने जब मनाजरे का जब हुआ था, ये 1901 या 2 की बात है, तो उस वक्त उस मनाजरे का जो फैसला करवाना था, वो बेसिकली सजेस्ट किया था मिर्जा कादियानी ने 3 उलमा का, मुसलमान उलमा का, जिसमें से एक मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब थे और 2 और थे, भी मेरे ज़हन से उनके नाम उतर रहे हैं। तो सैयद पीर मेर अली शाह साहब ने जब वो रिसीव किया था लेटर, तो उन्होंने कहा था मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तमाम शराइत को बसरो चश्म मानता हूँ। ठीक है जी, तो ये मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस वक्त तो ऐसा मसला था ही नहीं कि कोई किसी दूसरे के ऊपर जो था वो ऐसे इश्तिहारबाजी या कोई ऐसे होता था, कोई चक्कर नहीं था। सारे मुसलमान एक झंडे के नीचे थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो ये जो फिरका कार्ड है, ये बहुत बुरे तरीके से पिट चुका है, और आपको बता दिया क्या तो सूरह काज़मी दीन में मौजूद है इख्तिलाफ। ना। तो एक सवाल था भाइयों, अगर इजाजत दे दें। जी बोलूं? बोले बोले जी, होस्ट हो। जज़ाकल्लाह। और नहीं भाई, डर लगता है। अच्छा, अर्ज ये थी, किसने तारीख़ इस्लाम के अंदर सबसे पहले, रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बात जो कर रहा हूँ उसी का जवाब दिया जाए, स्ट्रॉ मैन ना हो, किस शख्स ने तारीख़ इस्लाम के अंदर सबसे पहले खुद को फ़िरका कह कर रजिस्टर करवाया? ये नहीं कि दूसरा कहता है कि ये बरेलवी है, वो कहता है ये वाबी है। फ़िरका टाइम किसने लेना, माना? रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 337 किताबुल बरिया, बहजूर नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर दामा इकबाल हो। ए फिरका जदीदा इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था जे, चूंकि मुसलमानों का एक नया फिरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकम खुद है। हेलो, ऐसा पहला दुनिया का पहला फिरका बने कादियानी फिरका, इस तो पहले तो फिरका नहीं मिलेगा।
आप जो कह रहे हैं मैं उसकी जो बात को ऐसी समझ कोई रहा हूँ। इबारत आप दिखा दें, ऐसी कोई इबारत आप जो है वो दिखा दें, आप देवबंदियों के लिए आए, बरेलवियों के लिए कोई दिखाएं ला के, कोई एक भी नहीं है। अहमद रजा खान मेरे बरेलवी अल्फाज रहमतुल्लाह शाह जी अलैह गौर हो। रखना है आपने, अच्छा शाह साहिबान ठीक हो गया। मेरे अल्फाज पे गौर रखना है। खुद माना वो बंदा कि हाँ जी हम फिरका खड़ा कर रहे हैं इस्लाम में, ये नहीं होना चाहिए कि वो कहे कि नहीं हम तो एक मकतबा फिक्र हैं और हम ही जो है ना वो ਯਾਰ ਭਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ नहीं ਜਾਓ ਮੰਨ यार ਲਓ शाह जी ਮੇਰੀ पक्की ਗੱਲ बात है, देवबंदियों ने तो नहीं ਪੱਕੀ कहा कि ਗੱਲ ਹੈ, हम ਜਾਓ फिरका हैं। ਚੈलेंज ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। वहाबिया ने ਇਹ आख्या होवे। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 13 ਸਫਾ 337 ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ ਦੀ ਡੇਟ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। शाह जी यानी वहाबी देवबंदी ये खुद को कोई भी फिरका नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं है ਉਹ फिरका, ये ਭਾਈ मकतबा ਉਹ फिक्र ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਿਰਕਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਬਤੌਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਉਨੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਐ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਹਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਲਾ ਯਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਜਲਿਸੇ ਹਰਾਰ, ਨਾਮ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਵੇ, ਐ ਮੈਂ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਤਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਕਰਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ, ਟਕਰਾਇਆ ਉਹ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 73 ਪੂਰੇ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੱਡੇ ਪੈਣੇ ਸੀ? ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਬ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਵਹਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 6-6 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਕਤਬੇ। ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਾਹਿਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ जी सफिया बाजी, किसी और का क्वेश्चन लेना तो ले लें, नहीं तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। नहीं आप करें, आपके बाद मौका देंगे, क्योंकि वो आ इसीलिए रहे हैं कि बदतमीजी करें, इधर उधर की बात करें और आपको डिट्रैक्ट करें। आप अपना सवाल मुकम्मल करें। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों के मुंह से भी काफ़ी दफ़ा सुना है शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का नाम, और एक प्रोमिनेंट शख्सियत थी, मतलब कोई ऐसे नहीं थे। अब अगर मैं उनके अल्फाज पढ़ूँ आपके सामने, और ये मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 736,
फिर शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी अशातुल सुन्ना यकम लफायत शशम जिल्द शांजदहम 1893 में लिखा, इस्लाम का छुपा दुश्मन, सानिय दज्जाल, ज़मानी नजूमी, रमली, ज्योतिषी, अटकलबाज, जफरी, भंगल, फक्कड़, अलड़पोयो, इसका मौत को निशान ठहराना हिमाकत। अड़ड़ पूपू, अड़ड़ पूपू, ये उस जमाने में कुछ स्लैंग थी, अड़ड़ पूपू। अलड़ पूपू, शैतान, मक्कार, झूठा, फरेबी, मलून, शेख गुस्ताख, मिसालुल दज्जाल और दज्जाल, गद्दार, बाजी पुरफितना, ध्यान से मक्कार। चेक कर लें, ये किसी ने गलत सवाल तो नहीं पकड़ा दिया है, ये सारा कुछ मिर्जा साहब को बोला है, आपको लग रहा है किसी नहीं मौलवी को बोल रहे हैं? नहीं वो वही पढ़ असल में रही कह हूँ। रही हैं कि ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने ये शायद कोई झूठ बोला था या गालियां निकाली थी। तो बाजी नहीं, ये इतनी सारी सख्त चीजें जो ज़बान बटालवी क्यों साहब ने इस्तेमाल लिखी हैं, हुई ये है? सारी, एक मिनट सुन लेना, ये सारी चीजें मिर्जा साहब के अंदर पाई जाती हैं, तो ये तो सच अब हुआ देखें ना। ना मुफ्ती भाई, ना करें ऐसे। नहीं बता दे, आप कोई एक चीज बता दे कि ये चीज साबित, मैं अभी कर देता हूँ, बताएं क्या साबित करना मैं है, नहीं बताएं। खोलती। नहीं ये तो गलत बात है। इधर देखे ना, कुरान ने कहा है एक जनीम को जनीम का है, तो वो सच हुआ, वो झूठ तो ना हुआ, वो गाली तो ना हुई। गाली तब बनती है कि जब एक बंदे को कहा जाए तू हरामी है, वह हालांकि वो हरामी नहीं है, वो हलाली है, उसके बाप का सारी दुनिया को पता है, उसको भी पता है कि मेरा बाप फलान है, लेकिन एक शख्स है कि उसको अपने बाप का इल्म नहीं है, तो उसके बारे में अगर कोई, मैं कहता हूं कि भाई तू हरामी है, तो भाई ये तो मैंने सच बोला, झूठ तो नहीं बोला, कोई गाली तो नहीं निकाली। तो कुरान ने भी यही किया, अल्लाह ने भी यही किया कि अल्लाह ने तो उस हरामी की वजाहत की थी कि तू हरामी है, ठीक है ना, तू जनीम है। तो ये बातें जो बटालवी साहब लिख रहे हैं, ये सारी बातें तो उसमें पाई जाती थी। अब बता दे कि कोई चीज एक बता दे एनीवन, तो मैं अभी 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 बैठ के साबित कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आप वो क्या उनको कह रहे सपोर्ट हैं, कर रहे हैं कि देखें वो सही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, नहीं, वजाहत नहीं मैं चाहिए, चले, आप प्लीज नहीं नहीं। पढ़ना चाह रही, कोई मसला नहीं है। इस्लाम का छुपा दुश्मन, ये पहला लफ्ज ही है ना, ऐसा ही है, बता देना कुछ, हाँ ना तो करिए। इस्लाम का पहला दुश्मन उन्होंने लिखा है। आज शाम को मुझे फिर गालियां पड़वाती नहीं आपने। मैं नहीं चले बहरहाल कोई मसला नहीं है। चले मैं वैसे ही फिर खुफिया तौर पे ये एक ऐलान कर देता हूँ, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, कोई एक बंदा मुझे चैलेंज कर ले कि ये निकाल के दिखाओ, मैं साबित कर दूं। ये चली जाएं, अपना क्या कहते हैं इनको, जो है ना, तरीका तबलीग अच्छा है। अगर देखें इतनी सारे बातें देखें, करने के बाद आप औरत हैं, देखिए मसला हो जाए ना थोड़ा सा। हाँ जरा, अच्छा, ये एक बंदा बहुत बेताब है, उनको उसको आने कर रही है ना, बटालवी साहब की जो आप बात कर रही है ना, इसको थोड़ा सा आप हिस्ट्री में देखें। बटालवी साहब जो हैं वो इस तरह के अल्फाज जो है वो मिर्ज़ा साहब को शर्मिंदा करने के लिए उनके अल्फाज उनको इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये जो आपने लिखे हैं ना, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये इस तरह की नई नई गालियाँ, इसलिए हम कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब गालियों के मुजद थे। मिर्ज़ा साहब ये खुद इस तरह की नई नई गालियाँ ईजाद करते थे। वो बटालवी साहब जो हैं वो, उनका जो है ना वो कुछ तबीयत ही इस तरह की थी, वो मिर्ज़ा साहब को शर्मिंदा करने के लिए उन्हीं के अल्फाज उनकी तरफ लौटाते थे कि भाई आप ये जो कहते हैं लोगों को, आप खुद ये हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ये मिर्ज़ा साहब ने जो इस्तेमाल किए हैं। मुर्दार खोल मौलवी, अंधेरे के कीड़े, बदजात, पलीद, आर मौलवी और इमामुल फितन और शेख अमका, शेख उज़्ज़ाल, नंगे इस्लाम, कुता नज़र, नफसानी, सफ़ीहों का नुत्फ़ा, गबी। ये मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको घंटा पढ़ के सुनाता रहूँ तो आप, शैतानुल अनस, शेख नजदी, शेख अमका, शेख उज़्ज़ाल, शक्की, आगे शीतनत की बदबू, शेख नामा, शेख मुज़िल, शरीर बेड़े, शेख ज़ाल, शेख चारबाज, शरीर नफ्स, ज़ाल बतालवी। ये बटालवी साहब को लिखा हुआ है मिर्ज़ा साहब ने, ज़ाल बतालवी, बटालवी नहीं बतालवी। वो आपको पता है, तो से टे से तो कर दे तो ये गाली बन जाती है, तो इसका मतलब होता है कि बातल को फॉलो करने वाला। तो आए फजालम तबा, नाल, लानुल्लाह, अलफ अलफ मर्रा। ये इस तरह के जो अल्फाज आप पढ़ रही हैं ना, ये मिर्ज़ा साहब निकालते थे उलमा कराम को, खुसूसन शेख बटालवी साहब को, और उनको वो जो थे क्या उसको कहते हैं, मेरा ज़हन से नाम उतर गया,
हाँ, उनको ये गालियां देते जिनको कहा गुलाम था अमृतसरी। मिर्जा साहब ने इब्नुल बगा किसको कहा था भला, मेरे नाम उत्तर जहन से। तो वो इन जो उलमा कराम को मिर्जा साहब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे तो उनको शर्मिंदा करने के लिए ये वापस उनको ये लुटा देते थे। मैं आपको हवाले भी दे सकता हूँ जो मैंने अभी, तो लंबी लिस्ट है ये इस तरह के सारे अल्फाज मिर्जा साहब के। जो कुछ भी किया वे ये पॉइंट भाई जान, एक देखो ना, मिनट टाइम मिल सकता है या नहीं? जो कुछ भी किया वे सारियां चीਜ਼ਾਂ भाई जब आप ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं यार कर लेंदे हो इन्हों जेडी काली आई है कि सब करो की अब वो अपना मैं इसलिए शाहजी इसलिए कह रहा था कि इनको तो तमीज खवातीन की नहीं है इन्हों कर नहीं है, लेंदे तो हो कर हम ना ले जरा सब कटना निकाल हम लेंदे उतार देते हैं उनको, वो हम खातून को उतार देते हैं क्योंकि ये गंदे लोग हैं, इनमें माँ बहन की तमीज नहीं है, हमें तो यहाँ है। कोई गल नहीं इन्हों लो जी, बोलन दियो आओ किंग जी, साहब आ भाई काका होना आ जाओ खेडो। सिस्टर तो खामोश नहीं, सिस्टर तो खामोश थी तो ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰੌਡ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਗਰ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਕੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ, ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ और मैं तेरे को मैं मरज़इयां को पूछ के बराड़ चलानी है, टाइम ला, सवाल करो जी, बिस्मिल्लाह सवाल करो। नहीं फिर इस तरह नहीं ना होता यार, टाइम लगेगा तो फिर मैं आगे गुनाहगारी ते गल करनी है कि शराब नोशी ते गल करना है, शुरू भी हो। नहीं चलो चले मैं बात करता चले शराब नोशी ते करिए आज मिर्जे दी शराब नोशी ते। मुफ्ती साहब मुझे इस बात का जवाब दें जो आपने पहले बोला है ना, नबी पाक मिर्जे की शराब नोशी पे बात करनी है कि नहीं बताएं। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने झूठ बोला है ना नबी पाक सल्लल्लाहु की हदीस के ऊपर, वो मैं आपको बताने आया हूँ। अगर उम्मते मोहम्मदिया में फिरके नहीं बढ़ने थे तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह या रसूलुल्लाह कहाँ से आ गया है? ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। मैं कह रहा हूँ ये चुश्ती या रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह अलीउन वलीउन ये कहाँ से आ गया? चलो अली वली अल्लाह भी हो गया ते शराबी ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ मुस्लिम मोहम्मदिया के अंदर बनने हैं ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? मैं कह रहा हूँ इस बात का जवाब दो, क्यों झूठ बोला? ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਈਏ। मौलवी साहब ये नबी पाक नींबू पानी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਲਵੇ। ਮਸੀਹੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ नहीं चलाना। आपने बोल दिया वो तो सारे जो है वो उसमें क्रिश्चियन अपना सवाल करके खामोश हो जाओ, सवाल करके खामोश हो जाए किंग भाई। मसीह मौत ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੇ। मैं कह रहा हूँ अच्छा यार एक सवाल किंग, एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, तसल्ली ना यार हदीस के ऊपर। अच्छा यार एक मिनट सोच लो यार, दाढ़ी रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पे झूठ बोल दिया यार। अच्छा गल तो सुनना यार किंग, सवाल भी मेरा भी सुनेगा कि नहीं? चुप करके सुन तो सही। अच्छा अच्छा किंग भाई ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਂਦੇ ਜੇ जी? बस है एक छोटा सा सवाल। आप जी मैं भी बताता हूँ मेरे भाई, आप मुझे बता सकते हैं जब कुरान की आयत आई तो उससे पहले शराब जब लोग पीते थे वो मुझे बताओ शराब कब हराम हुई? आज यहीं पे बात होगी, 87 लोग सुन रहे हैं शराब कब हराम हुई और कौन पीता था? मुझे शराब बताओ, मैं अभी साबित करता हूँ, मैं साबित करूंगा आज कौन कौन शराब पहले पीता था, आज साबित होगा। जाहिल लोग जो नीचे बैठ के करते रहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ वो भी साबित करो। अच्छा नहीं चलो ठीक है, साबित करेंगे। गल करन भी ते दे ना, गल करन भी ते दे। मैं बताऊंगा आज शराब कब हराम हुई यार, गल भी ते करन दे ना। अच्छा मिर्जा तू ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ? ਬਸ ਦੱਸ ਨਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਹਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ?
मैं कह रहा हूँ मिर्जा साहब तो पीते ही नहीं थे, उससे पहले जो पीते नहीं थे वो पीता हलाल सी थी पीता क्यों हराम नहीं? थी, उसके तू मेरे को पहले भी हवाला क्यों बताओ नहीं ना पूछा लोगों को, तू मेरे को हवाला क्यों नहीं वो पूछा भी फिर? बताओ। हर बात अच्छा पे चलो हदीस मैं पे भी हवाला झूठ दे बोला, लगा। और ये बताओ क्यों नहीं बता रहे शराब कब चल हराम मैं हुई? हवाला बताओ। हवाला दे मैं कह रहा हूँ हवाला शराब कब हराम हुई ये बताओ। यार हवाला देन लगा ना यार, सुन भी तो लेना यार। मुझे तू मेरे कुरान को से पूछिया ना बताओ शराब कब हराम हुई, कौन कौन शराब अच्छा वो पीता था, बात चो सब दसने बताओ। वो बात चो दसने आज हाँ। बताओ, आज तू सब हवाला मेरे को पूछिया ना यार कि भाई मिर्जा अब कादियानी भागते हो आप, मेरे साथ बात किया यार करो, आपको स्क्रीन मजा वड्डी करो आएगा। यार जरा, स्क्रीन वड्डी कर मुबशर लो मेरे साथ भाई बात किया करो, आपको मजा आएगा। मैं बताऊंगा शराब कब हराम हुई, मैं सब यार। बताऊंगा आपको। यार एक मिनट और कौन शराबी कौन शराब पीता था सब। ओए अच्छा यार ठहर भी जाई ना जरा थोड़ा रुक के इथे जरा। ए मकतूबात जनाब मकतूबात अहमद जिल्द चहारम ते सफा 248 ठीक है, मकतूब नंबर 113 है ਤੁਹਾਡੇ सामने खुलिया जे देख लो। मैंने हसबे तहरीर आपके अर्के कफूर तरक कर दिया था और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किया और स्टाकश एमिलेशन, मगर मैं समझ नहीं सकता, ताजुब की जगह है कि अभी एक दिन भी इस तब्दीली पर नहीं गुजरा था। करीबन निसफ रात के बाद या कुछ पहले सोने की हालत में मुझको सख्त बेकरारी, नहायत दर्जा की हरारत मालूम हुई और दिल चाहा है कि तमाम कपड़े उतार कर बाहर निकल जाऊं। कुछ समझ नहीं आती कि इस कदर कपड़े नंगे कपड़े ला नंगे के शाह कपड़े ला के धोती ला के सुट के वाकई इंज लिखिਆ हाँ, नहीं है नहीं शाह जी एक सेकंड ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ कपड़े ला के बस सुट के नंगा ही बाहर पूरी कादियान दी गलियां दे विच ਕਿਹੜੀ ਪੀ ਲਈ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗ कपड़े तो ਲੱਗ नबी गई पाक ਕੱਪੜੇ ਲਾ सल्लम ने भी उतारे थे नहीं, जब ओए जबान बंद कर ले चलो किसे कुत्ते दे तुखमा तेरे मिर्जे दी ऐसी कुत्ते दे बच्चिया, शाह जी मिर्जा हरामजादे। छिल दियो चुप करो सारे म्यूट हो शाह जी कुत्ते मिर्जा दा छिल बच्चा दियो इन्हें ना हुन होवे बकवास ते। कीती है हरामी हरामी ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੂਥਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਸੂਰ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਵੰਗਣਾ ਉਹਦਾ ਬੂਥਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖਬੀਰ ਲਾਂਤੀ ਕਰਦਾਰ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਔਕਾਤ। ਇਹ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, और किसी ने कहा सी, सही कहा सी, सिखाए कौन कुत्ते को कहाँ भौंके किसे भौंके। ये कुत्ते की मर्जी है भाई। ਓਏ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ। ਐ ਲੋ ਐ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਣ ਲੱਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਖੋਲੋ ਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ। ਐਵੇਂ ਓਏ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਹੁਣ। रूहानी खजाइन जिल्द 4 सफा 334 आसमानी फैसला होता है, आसमान तो है फैसला नाजल होया है कि अगर वो मुझ पर राजी नहीं और मैं उसकी नगाह में बुरा हूं तो फिर कुत्ते की तरह क्या 1000 दर्जे कुत्तों से बदतर हूं। घर सगे नफ्से दनीरा परवरेम अज सगाने कूचा हा हम कम तरेम। वो आंदा मैं कुत्ता वां, पता है केड़ा कुत्ता वां? आंदा कादियान दे कुत्तियां तू बदतरीन कुत्ता वां मैं। और मिर्जा कादियानी कहंदा जे पिया कुत्ता। ए लो ए देखो ओए ओए ए मलफूजात जिल्द 5 सफा 97 ओ आंदा वे कि सच्चे खुदा परस्त बनो। सच्चे खुदा परस्त बनन दा तरीका है वे कि कुत्ती दा बच्चा बन जाओ। और कुत्ती दा बच्चा है जे ओए ओए ए जे ओए कुत्ती दा बच्चा, खबीस दे बच्चे ना होते, किसी कुत्ती दे बच्चे ना होते। मैं अपने को नहीं जे कहंदा पिया, मेरी आदत नहीं गाल कड्डन दी। जो लिखिया सी वो पढ़ के सुनाने पे तुहानू। कुत्ती दी ओ बच्चियो
ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 15-20 ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਬਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਬੀਆਂ ਅੱਜ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਿਆ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਦਨਸਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਕੁੱਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਬੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੰਦ ਉਂਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀ ਮਊਦ ਅਲੇ ਸ਼ਿਆਲਕੋਟ ਪੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬ ਸੂਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੀਨ ਸੂਨ ਸਵਾਦ ਸੂਦ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਡਾ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਸੇ ਬਦ ਨਸਲੇ ਔਰ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਆਣਗੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਉੱਚੀ ਕਰਾ ਕੇ 15-20 ਮਗਰੋਂ ਚੁੰਗੇ ਡੰਡੇ ਪਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਹਜੂਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏ ਆ, ਮਸੀ ਮੌਦ ਨੂੰ ਛੇਤਰ ਪਵਾਏ ਆ ਸਾਂਭੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਝੁੱਟ ਲਾਣ ਦੇ ਮਲਕ, ਥੋੜਾ ਝੁੱਟ ਲਾਈ ਭਾਈ, ਲਾਈ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਬੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਲਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਾਲ ਕੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੱਟੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਚੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਓ ਭਾਈ, ਓ ਭਾਈ, ਓ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਓਏ। ਨਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰ, ਹੈਲੋ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਖਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਮ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਦੱਸ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਕੁੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ, ਤੁਹਾਡੇ नौकर दुआ कर शाह जी मैं जरा इस पॉइंट की तरफ कहता हूँ कि तवज्जो दें जरा कि ये एक अकेला शख्स नहीं था, ये जमात की तलीम ही यही है और ये मिर्जा कादियानी की तलीम है। इनको ये सब करना, ये इसके ऊपर रखे बात, ये इनका पर्सनल नहीं है कि पता की गल है कि अपना एक तरीकाकार है कि जो किताबां च लिखे है ना बस असं ओनू टच करना है, अपने कोलों इजाफी कोई चीज नहीं
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਬੀਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਤਹਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 295 ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਾਤਿਮਾਨਾ ਇਬਾਰਤਾਂ ਔਰ ਗੁਸਤਾਹੀ ਤੇ ਮਹਮੂਲ ਇਬਾਰਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਗੁਸਤਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ 295 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 19 ਸਫਾ 6 ਕਸ਼ਤੀਏ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਇਬਾਰਤ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਬਾਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਨਬੀ ਨਬੀ ਸਲਾਤੁਸਲਾਮ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਹਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਲਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, तो खबीस का पुत्र पता की करता सी, आंदा सी ओ साइयां ने किया है, ओ यूदियां ने किया है, ए लो ए जरा वेख्या जे ए एक होर इबारत, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ नहीं पढ़ सकता। रूहानी खज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 131 किताबुल बरिया, वो आंदा हिंदुओं और आर्यों की गालियां। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये का है, ए लो ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ नहीं तुसीं पढ़ सकदे। ये तो शाह जी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा। हाँ जी, ते एक यार एक मैं गल कंप्लीट कर ला ते फिर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ਉਹਨੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 3 सितंबर 1935 ਦਾ शुमारा ਤੇ सफ़ा नंबर 6। वो आंदा है गाली देने का एक तरीक ये भी हुआ करता है कि दूसरे की तरफ गाली मंसूब करके उसका जिक्र किया जाए, जैसे कोई शख्स किसी को अपने मुंह से तो हरामजादा ना कहे मगर ये कह दे कि फलां शख्स आपको हरामजादा कहता था, ये भी गाली होगी जो उसने दूसरे को दी, गो दूसरे की जुबान से दिलाई। हुन मिर्जे कादियानी कज़्ज़ाब ते दज्जाल ने एक सेकंड मलिक भाई एक सेकंड। शाह जी अल फजल 3 सितंबर 1900 3 सितंबर 1935 ਦਾ शुमारा है। ओके जज़ाकल्लाह। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੱਸੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫੀ ਹਯਾਤ ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਫਾ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਯਾਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਢੂਈ ਚੋਂ ਚਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਆਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢੂਈ ਚ ਉਂਗਲ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਛੜਪੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਫਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਜੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ। ਗਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਤ ਮਹਮੂਦਾ ਸਫਾਤ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ठीक नहीं, मैं क्या मैं पूछ ला ना फिर ऐसी की बात बंदे ना कहने को फनाबल एक किताब है आपकी जिसकी तारीफ आला हजरत ने अपने फतावा रिज़िया में की है। चल थले शोरिया, चल थले शोरिया रिकॉर्ड आया मिर्जा साहब ने चल शोरिया एडा तो। हां जी मिर्जा हैं मुफ्ती साहब मज़ामीन सुलह दे विच लिखिया कि ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢੇ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਾਗ ਆਡੀਓ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं, आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तमरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना। मुफ्ती साहब वो वाली लावा नहीं वाह भाई काम खराब। मेरे को सामने खुली पई है, मैं क्या नहीं ऐ नहीं वो बहुत ही बड़े गंदे लोग ने, वो बड़े गंदे ने। अल्लाह दी पुत्र मार रहे जिवें 1 to 5 नवा ले के नहीं। अल्लाह माफ करे, इन्ने को गंदे लोग ने। ओए होए 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 ओए होए होए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ ਮਹਿਤੇ ਨੇ ਤੰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਬਵਾ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 37 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ। ਔਰ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਲਮਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜੋ ਫਸੀ ਪਈ ਦੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਜੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੌਜੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੇੜਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 14 ਸਫਾ 197 कशफुल गिता। मिर्जा कादियानी कहता है कि इस शख्स की जोरों की इसके बाद मुरीदों से आशनाई है। हेलो वो गंदी सी गंदी औरत सी। कौन है भाई? गल करो माइक। अफजाल साहब अफजाल साहब आवाज आ रही है? अफजाल साहब दिल्ली गुरुजी होने की कोशिश कर रहे हैं थले। यार थले बह जाके एवें बस मुंह चुक के आ जांदे हो। और सीरतुल महदी हिसाब वाला सफा 56 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ।
ਉਹ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ, ਮੌਲਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਇਹ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਜ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਂਡੀ ਸਾਡੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਵੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਤੇਰੀ। ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਲਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੁਣ। हजरत साहब ने फरमाया जाओ जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूं। मौलवी साहब फरमाते थे कि इसके बाद मौलवी अब्दुल करीम साहब नीची नजरें करके मेरी तरफ आए तो मैंने कहा, मौलवी साहब ने आए तो मैंने कहा मौलवी साहब जवाब ले आए हो, तेनू ते मैं क्या सी बड़ा वड्डा बगैरत ही, इनू ना जाके समझाई बिस्ती करेगा ही तेरी। ਇਹ ਜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਵੱਡਾ जमाते अहमदिया संभाली जे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।